So students, this is the next program of the selection sort. I have already explained you the technique of the selection sort. So now understand the program of the selection sort. So in order to sort an array in selection sort, we have taken some values in the array, and the name of the array is int array. So here in the array we have taken some values. This is 10, 20, 25, 63, 96 and 57. These values are stored in the array in the random order. Uh, Otherwise, here I have initialized the array, but you can also input the values of the array using the scanner class. So this is your own choice that how you input the values in the array. But here I have initialized the array with some values using scanner. You can also input the values. So here the next statement is int size is equal to array dot length. So int size equal to array dot length. So here the length of the array will be calculated with the help of the statement length. This length statement is used to calculate the length of an array. So here we have written array dot length. So the length statement will calculate the length of the array. So finally the length of the array will be stored in the variable size. So now here we have started the loop. The first loop is for integer I is equal to 0, I is less than size minus 1, I plus plus. So here we have executed the loop less than size minus 1 because this is the loop for number of passes. This is the loop for number of passes. So you know well that for an array of the size n, there should be n minus 1 passes. So the size of the array is size. So there will be size minus 1 passes for sorting the array. So in the first step, we have taken another variable min and we have stored I in min. This means that the minimum index is stored in the min. Means we have considered that the value at the position I, the value at the position I is the minimum value. So the value of I we have stored in the min. Now you can also understand it from here. Uh, Here I am taking some values of the array. This is 10, 10, comma 20, comma 25, comma 63, comma 96 and 57. तो ये array की वो वैल्यूज हैं जिनको हमने स्टोर कर लिया है. अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सबसे पहले जो स्टेटमेंट चलाई है, हमने सबसे पहले स्टेटमेंट चलाई है साइज इक्वल टू array डॉट लेंथ. तो साइज इक्वल टू array डॉट लेंथ स्टेटमेंट जब चलेगी तो उसके चलने पर साइज में array का साइज आ जाएगा और array का साइज कितना है, array का साइज है 6. दैट में साइज में जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी 6. उसके बाद लूप चलेगा int I इक्वल्स टू 0 से I इज लेस देन साइज माइनस 1 तक. सो the loop is executing for size minus 1. I have told you that this is because the number of the passes is always required less than the size of the array. Number of passes is always less than 1 to the size of the array. So the loop is executing to the size minus 1. And here we have written int min is equal to I. Min is equal to I. So min equals to I. I अभी I की वैल्यू क्या है 0, तो min में चला जाएगा 0. ठीक है. This is द स्टेप 1. ये है आपके एरे का पास 1 जिसमें क्या होगा, मिन में वैल्यू जो आ जाएगी, मिन में वैल्यू आ गई 0. अब जे का लूप स्टार्ट होगा. तो जे का लूप स्टार्ट होगा कहाँ से, i प्लस 1 से. जे का लूप स्टार्ट होगा i प्लस 1 से. दैट मीन्स जे का लूप i प्लस 1 से. i की वैल्यू है 0, तो जे का लूप चलेगा कहाँ से, 1 से. और अब वैल्यू कंपेयर होगी दैट एरे एट जे. तो j की वैल्यू क्या है 1. तो फर्स्ट पोजीशन पे एरे में कौन सी वैल्यू है 20. तो चेक होगा ये
कि इफ 20 इज लेस देन एरे एट मिन, मिन में क्या वैल्यू पड़ी है 0, मीन्स 20 जो है वो एरे की 0th पोजीशन की वैल्यू, दैट मीन्स 10 से अगर छोटा है, ठीक है, अगर 20 जो है वो 10 से छोटा है तो 20 10 से छोटा होने की कंडीशन में क्या होना चाहिए, मिन में जे की वैल्यू आ जाए, मिन में जे की वैल्यू आ जाए, मतलब जो ये वाली अभी तक हमने मिन में किसको डाल रखा था 0, लेकिन हमको मिला कि इस पोजीशन वाली जो वैल्यू है वो इससे छोटी है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो 0th पोजीशन है उसकी जगह पर मिन में क्या जाना चाहिए, जे आ जाना चाहिए, मतलब जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब मिन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में मिन में क्या आ जाएगा 1, और मिन में 1 आ जाने के बाद इस तरह से अब ये लूप अभी एक बार चला, ऐसे ही जे का लूप 1 के लिए चला, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा, ऐसे 1 बाई 1 करता हुआ ये लूप लास्ट तक एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट तक एग्जीक्यूट होने के बाद हर वैल्यू जो है वो एक दूसरे से कंपेयर होती जाएगी, और फाइनली एरे की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस सबसे छोटी वैल्यू की पोजीशन किस में आ जाएगी, मिन में आ जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उसकी पोजीशन आ जाएगी मिन में, तो सबसे छोटी वैल्यू की पोजीशन आ गई मिन में, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प वेरिएबल का यूज करके टेम्प इज इक्वल टू एरे एट मिन इज इक्वल टू एरे एट आई, और एरे एट आई इज इक्वल टू टेम्प। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमको मिनिमम वैल्यू मिली थी वो कहाँ पर मिली जो सबसे छोटी वैल्यू मिली है वो किस पोजीशन पर मिली है, मिन पर, तो जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है उसकी पोजीशन हमको मिल गई मिन में, तो अब हमने क्या किया, मिन वाली पोजीशन को डाल दिया टेम्प में, और मिन वाली पोजीशन पर ले आए आई वाली पोजीशन की वैल्यू को, और आई वाली पोजीशन पर ले आए टेम्प को, मतलब क्या हुआ कि हमने वैल्यूज को आपस में स्वैप कर दिया, तो उसको वैल्यूज को स्वैप करने से क्या होगा, फर्स्ट पास में जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, सबसे स्मॉलर वैल्यू जो है वो एरे की फर्स्ट पोजीशन पर अपने आप पहुंच जाएगी। इस तरह से करते करते फाइनली पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से लास्ट वाली लूप से जो सॉर्टेड एरे है वो प्रिंट हो जाएगा।